Students, today we'll talk about chapter 13, carboxylic acids. You know, compounds containing carboxyl group are called carboxylic acids. Compounds containing carboxyl group, COOH group, they are called carboxylic acids. Now this carboxyl group, this is also written as like this. This word carboxyl is derived from carbonyl. This group is carbonyl group, and this is hydroxyl group. So the combination of carbonyl and hydroxyl, this gives us carboxyl. So we call it as carboxylic group, and the compounds containing this group are called carboxylic acids. Aliphatic carboxylic acids, aliphatic carboxylic acids are commonly called as fatty acids. Aliphatic carboxylic acids को क्या बोलते हैं? Fatty acids बोलते हैं. An MCQs here. Look. Which of the following is not a fatty acid? CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH, C6H5COOH. Which of these is not a fatty acid? The answer lies in this point. Carboxylic acids, the general formula of carboxylic acids is CnH2nO2, or it can also be written as CnH2n plus 1 COOH. This is the formula, general formula of esters also. So carboxylic acids are functional group isomers of esters. Functional group isomers of esters. Next comes the nomenclature of carboxylic acids. Carboxylic acids, aliphatic carboxylic acids particularly, they are known as alkanoic acids. They are also known as alkanoic acids. For example, a carboxylic acid with one carbon atom in it is called methanoic acid. So their names are very simple. They are derived from the names of alkanes by dropping the ending E of the alkane with oic acid. So methanoic acid, CH3COOH, this is ethanoic acid. CH3CH2COOH, this is propanoic acid. CH3CH2COOH, this is butanoic acid. You must learn the names of first 4 carboxylic acids, their common names as well as IUPAC names. The common names of carboxylic acids are derived from the source from which they are derived.
For example, formic acid, common name is formic acid, common names. This is from formica, which stands for ant, because the formerly formic acid was derived from the distillation of red ants. So it is derived from ant, formic acid. Similarly, acetic acid, CH3COOH, acetic acid, the common name is acetic acid. Acetum stands for vinegar. Which of the following acid smells of rancid butter? MCQs. Formic acid, acetic acid, propanoic acid, and butanoic acid, C3H7COOH. So butyric acid smells that of a rancid butter. Next comes the methods of preparation of carboxylic acids. So general methods of their preparation include methods of preparation of carboxylic acids. Number 1, from alcohols. अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से, अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो RCH2COOH for example I have this alcohol and I treat it with potassium dichromate K2Cr2O7 and H2SO4. Remember this CH2OH group on oxidation is always changed into CHO. So this is formula, you have to memorize this formula. CH2OH on oxidation will always be changed into CHO. आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन मीन्स increasing the number of bonds of carbon with oxygen. So here carbon has one bond with oxygen and here carbon has two bonds with oxygen. You know that CHO is actually C double bond OH. So carbon has two bonds with oxygen. So in oxidation the number of bonds of carbon with oxygen are increased. So on further oxidation this CHO group is changed into COOH. Again another formula, always remember that CHO group on oxidation will be changed into COOH group. If we want to stop oxidation process at aldehyde, we have to distill the mixture to remove aldehyde, otherwise it will be changed ultimately into carboxylic acid. Number 2, we can also direct oxidize aldehydes into carboxylic acids from nitriles. Carboxylic acids can also be prepared from alkane nitriles. For example, I have this nitrile R C triple bond N. Alkyne nitriles on hydrolysis will produce acid hydrolysis, they will produce RCOOH. Again another formula, always remember that C triple bond N on hydrolysis will be changed into COOH plus ammonia.
It might also be written as ammonium chloride if we have HCl here. So C triple bond N will always be changed into COOH on acid hydrolysis. Number 3, from esters. Carboxylic acids can also be prepared from esters by hydrolysis. For example, I have this ester RCOOR prime. This on hydrolysis will be changed into RCOOH plus ROH. So remember, this R prime will be changed into alcohol and this R will be changed into carboxylic acid. The hydrolysis of esters proceeds in 2 steps. First, we react ester, we boil it with concentrated sodium hydroxide solution, and then we treat it with an acid. So the ultimate result is hydrolysis, and we have these 2 products. So you must know that how to identify the products. R prime will always be changed into alcohol and RCOO will be changed into RCOOH. Then another method of preparation of carboxylic acids is from Grignard reagent. From Grignard's reagent. We have this RMgX. On treatment with carbon dioxide, it will be changed into RCOOMgX, and this on acid hydrolysis will be changed into carboxylic acid, RCOOH. So the product will be RCOOH. The product carboxylic acid will have one more carbon atom than the number of carbon atoms present in the Grignard reagent. So if we have methyl magnesium bromide, it will be changed into propanoic acid. Or if you have propyl magnesium bromide, the product will be butanoic acid. So the number of carbon atom in carboxylic acid will always be one more than present in the Grignard region, because one of the carbon will come from carbon dioxide always. Then another method of the preparation of carboxylic acids is from alkenes. The oxidative cleavage of alkenes also give carboxylic acids. Oxidative cleavage. R CH double bond CH R. Suppose we have this alkene, and when it is reacted with alkaline KMnO4, oxidative cleavage will always proceed through reaction with alkaline KMnO4 / OH negative. This is alkaline KMnO4. And always remember that this double bond will cleave and we will get the product RCOOH, and this side will also be changed into RCOOH. दोनों sides carboxylic acid में change हो जाएंगे. And remember that if we have a terminal alkene, अगर हमारे पास terminal alkene होगी तो one of the product may be carbon dioxide and water. Let's see how. Suppose we have this CH3CH double bond CH2. अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन पर, this part there are 2 carbon mean 2 carbon carboxylic acid will be produced.
So to identify the carboxylic acid that will be produced is very simple. Just count the number of carbon atoms on the both sides of the double bond. So we have 2 carbons on this side. So 2 carbon carboxylic acid will be produced, which is acetic acid. And we have 1 carbon on the other side of the double bond. So 1 carbon carboxylic acid will be produced, and 1 carbon carboxylic acid you know is formic acid. So the other product will be formic acid. But under the reaction conditions, this formic acid may also be changed into CO2 plus water, because it is a strong reducing agent also. So if we have a terminal alkene, we will get carbon dioxide, water and acetic acid. Okay? So this reaction is very important to locate the position of the double bond. For example, if I give you an MCQs which states that oxidation of an alkene in the presence of alkaline KMnO4 produces only acetic acid. What is the formula of alkene? What is the formula of alkene? Question is, oxidation of an alkene in the presence of alkaline KMnO4 produces only acetic acid. What is the formula of alkene? You have options CH3, CH, double bond CH, CH3. CH3, CH, double bond CH2. CH3, CH, 2 CH double bond CH2, CH2 double bond CH2. Now, what will be the products which will be formed on the oxidation of all these alkenes? We can easily identify. Let's see. This alkene has 2 carbons on this side of the double bond and 2 carbons on the other side of the double bond. 2 carbons, these 2 carbons will be changed into 2 carbon carboxylic acid, which is acetic acid. This will also be changed into acetic acid. So in oxidation of this alkene, you will always get acetic acid. In case of this alkene, you have 2 carbons on one side. So the product formed from here will be acetic acid, and 1 carbon on this side. 1 carbon means 1 carbon carboxylic acid, which is formic acid, and which I have told you changes to carbon dioxide and water. So carbon dioxide and water and acetic acid in this case will be produced. In this case, we have 3 carbons on one side of the double bond. 3 carbons will be changed into propanoic acid, and 1 carbon will be changed into CO2 and water. In this case, we have CH2 on this side and CH2 on this side. CH2, 1 carbon changed into formic acid and ultimately CO2 and water, and this will also be changed into CO2 and water. So the alkene which will produce only acetic acid on alkaline hydrolysis, that is this one. It has 2 carbons on this side and 2 carbons on this side of the double bond. So 2 carbons will produce acetic acid, these 2 carbons also acetic acid. So the product is only acetic acid. So this is very important to locate the position of the double bond. Next comes let's see another example, another MCQs. Identify the end product, identify the end product
B in the following sequence of reactions. हमारे पास sequence of reactions ये है कि we have this methyl chloride which is treated with alcoholic potassium cyanide and changes into A, and this A on acid hydrolysis changes into B. So you have to identify the product B. The options you are given are CH3 NH2, CH3 COCH3, CH3 COOH or HCOOH. Now I told you that CN group on hydrolysis is changed into COOH. Now if you follow the sequence of these reactions you have studied in alkyl halides, that when you react alkyl halide with potassium cyanide, Cl will be changed, Cl will be replaced with Cn. So A is actually CH3Cl. और अभी हमने ये पढ़ा प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो Cn ग्रुप इज चेंज्ड इनटू COOH. So CH3COOH. So your answer is acetic acid. Next comes the general properties of carboxylic acids. So let's see what are the general properties. General properties of carboxylic acids. Smell. The first three carboxylic acids, first three carboxylic acids C1 to C3 are colorless with pungent smell. Next three acids C4 to C6 have unpleasant odor. And among these, butyric acid C4, CH3, CH2, CH2, COOH has the smell of rancid butter. ब्यूटारिक एसिड की जो स्मेल है रेंसिड बटर की है, ब्यूटानोइक एसिड की. नेक्स्ट, solubility of carboxylic acids. Solubility. Carboxylic acids are soluble in water. The first four carboxylic acids are very soluble in water due to hydrogen bonding. First four carboxylic acids. First four carboxylic acids are very soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding. And as the number of carbon atoms in the chain increases, the solubility decreases. So the order of solubility is formic acid is more soluble than acetic acid CH3COOH, C2H5COOH, so on. Next comes
their melting and boiling points. Boiling points. Boiling points of carboxylic acids are directly proportional to the molar mass. So as the mass of carboxylic acid increases, their boiling point increases. Melting point. Melting points of carboxylic acids increase irregularly with the increase in the molecular mass. And remember a point here that even number carboxylic acids have higher melting point than the next odd number carboxylic acid. For example, even number carboxylic acids have higher melting point than next odd number carboxylic acid. So this is the point to remember here. For example, see an MCQs here. Which of the following carboxylic acid has a higher melting point? Which of the following carboxylic acid has higher melting point? The options you are given is formic acid, propanoic acid C2H5COOH, C3H7COOH, C4H9COOH. Now remember here कि जैसे जैसे molecular mass increase होगा melting point increase होगा, but with एक्सेप्शन. और वो एक्सेप्शन क्या है कि इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नेक्स्ट ऑड से हायर होगा. सो दिस इज 1 कार्बन, 3 कार्बन्स, 4 कार्बन्स, 5 कार्बन्स. सो एज द नंबर ऑफ कार्बन्स इज इंक्रीजिंग, मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीजिंग. सो these two should have higher melting point. Now we have to decide among these two. So we have to keep that point in mind. Even number carboxylic acid has higher melting point than the next odd. So here the number of carbon atom is 3 plus 1 4. So this is even number carboxylic acid. 4 plus 1 5. This is next odd. So even number carboxylic acid has higher melting point than the next odd. So highest melting point in this group will be of butanoic acid. So this is the point to remember here. Next we'll be talking about the reactivity of carboxylic acids. So reactivity of carboxylic acids. Reactivity. Carboxylic acids give 3 types of chemical reactions. Number 1, R C double bond O OH. Those chemical reactions in which only this hydrogen atom is involved. This hydrogen is acidic, so all the reactions which proceed through by the removal of this hydrogen atom, they are the reactions of carboxylic acid as an acid. These reactions show that carboxylic acid is an acid. Next, the second type of chemical reactions are those in which the hydroxyl group as a whole participates. This OH as a whole participates.
These reactions of carboxylic acids are nucleophilic substitution reactions and they proceed through an attack of nucleophile, and this OH group is replaced with the attacking nucleophile. Then the third type of reaction is the reactions in which the whole carboxyl group is involved. R, C double bond O, OH. This whole carboxyl group is involved. So we have these three categories of reactions of carboxylic acid, and we will discuss them one by one. So let's start with those reactions which involve only the hydrogen of carboxylic acids. You should keep in mind that carboxylic acids are acids, but they are weaker acids than the mineral acids. So the first type we are going to discuss, R, C double bond O, OH. Carboxylic acid ionizes in the presence of water like this, R, C double bond O, O negative plus H positive, and this H positive combines with water to form hydronium ion. So remember here that this carboxylate ion is resonance stabilized. So जितनी इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2-4 पॉइंट अब अपने जहन में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रेफरेंस टू एमसीक्यूज। सो पॉइंट नंबर 1, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक strength of carboxylic acid, this is measured by their Ka value, and acidic strength is directly proportional to Ka value and inversely proportional to pKa value. The higher the Ka value of the acid, the stronger will be the acid, and higher the pKa value, lower will be the strength of the acid. Now there are some groups which increase acidic strength and there are groups which decrease the strength of carboxylic acids. So let us see which are the groups which increase the acidity of carboxylic acids. So point number 1, remember that electron releasing groups increase acidity. और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? अल्काइल ग्रुप्स आर ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? दे डिक्रीज एसिडिटी, दे डिक्रीज एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। सो इन फॉर्मिक एसिड HCOOH, acetic acid CH3COOH, C2H5COOH, and C3H7COOH. In this group of acids, the highest acidity is of formic acid. This is an alkyl group and this is electron releasing group. और electron releasing group क्या करेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। क्यों? इसलिए कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल हो जाता है और इसके लिए हाइड्रोजन आयन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये लेस एसिडिक है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप बड़ा हो गया, सो एसिडिटी कम हो गई और ये अल्काइल ग्रुप मज़ीद बड़ा हो गया, एसिडिटी फर्दर डिक्रीज हो गई। So the highest acidity is of formic acid, then of acetic, then propanoic, and then of butyric acid. Number 2, remember that electron withdrawing groups, they increase acidity. Electron withdrawing groups increase acidity. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन से हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, एटसेट्रा. These are electron releasing groups.
इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे. सो क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके मैंने यहां पे क्लोरीन लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेंगे, वो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे. सो क्लोरोएसिटिक एसिड इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड. नंबर 3 पॉइंट याद रखिएगा कि द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, द ग्रेटर विल बी द एसिडिटी ऑफ द रिजल्टिंग एसिड. ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of electron withdrawing group greater will be acidity. For example, if we have fluoroacetic acid, chloroacetic acid, bromoacetic acid. So among these, fluoroacetic acid is stronger than chloroacetic acid, and then it is stronger than bromoacetic acid because the electronegativity of fluorine is higher than chlorine, and this in turn is higher than bromine. Next, another point to remember is the greater the distance of the electron withdrawing group from the carbonyl carbon, the lesser will be the acidity. जितना इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप दूर होता जाएगा कार्बोनल कार्बन से, उतना एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव, लेट्स डिस्कस एन MCQs here. Which of the following is more acidic? Options are butanoic acid, 2-chloro-butanoic acid, 3-chloro-butanoic acid, 4-chloro-butanoic acid. Now, which of these is strongest? This is butanoic acid. इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच हो गया, एसिडिटी बढ़ गई, यहाँ भी अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है. सो दीज 3 आर स्ट्रॉन्गर देन ब्यूटानोइक एसिड. एक बात कंफर्म है. अब अगली बात, इन तीनों आइसोमर्स में क्लोरो ग्रुप अटैच है, और मैंने कहा कि क्लोरो ग्रुप जितना दूर होता जाएगा कार्बोनल कार्बन से, उतना एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी. तो 2-chloro-butanoic एसिड का मतलब है ये सेकेंड कार्बन पे है क्लोरो ग्रुप, यहाँ थर्ड कार्बन पे है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन पर. तो यहाँ चूंकि कार्बोनल ग्रुप के करीब है, एसिडिटी ज्यादा है, यहाँ कार्बोनल ग्रुप से दूर है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इसलिए एसिडिटी कम है. सो द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 2-chloro-butanoic एसिड. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर. Next, we are going to talk about the chemical reactions which involve this hydrogen atom of the carboxyl group. वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जिसमें ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो रिएक्शंस जो हैं वो एसिड लाइक रिएक्शंस हैं. और आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं. जनरल एक बात याद रखें तमाम एसिड्स के लिए कि जो एसिड्स होते हैं they react with bases to form salt, number 1. Number 2, acids जो होते हैं they react with carbonates and bicarbonates to form salt, water and carbon dioxide. फिर एक और identification acids की ये है कि जो acids होते हैं when they react with active metals they produce hydrogen gas. ये
ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जो आमतौर पर सारे एसिड्स देते हैं। तो ये तीनों किस्म के रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी देते हैं। सो लेट अस सी देयर रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम। सो नंबर 1, I have this carboxylic acid R COOH plus NaOH. So what will be the product? Simple, R COONA plus water. Salt और water की formation होगी. This H is replaced with sodium. B, R COOH plus Na2CO3 और NaHCO3 बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सो R COONA प्लस CO2 प्लस वाटर। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के केस में सिर्फ एक एडिशनल चीज बनती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और डिफरेंस बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का जस्ट नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात यहां पर याद रखें। फॉर एग्जांपल मैं एमसीक्यूज की फॉर्म में इसको डिस्कस करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग will produce carbon dioxide on reaction with sodium bicarbonate NaHCO3. Your options are phenol, acetic acid, acetaldehyde, and the last one is acetone. तो आपने याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ सॉल्ट एंड वाटर। फिनोल अगरचे एसिडिक है लेकिन ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता। आपने फिनोल वाले चैप्टर में इस चीज को पढ़ रखा है। नाउ एक बात और याद रखें, एक और रिएक्शन जो कि टिपिकल है ऑफ एसिड्स, वो रिएक्शन ये है कि जो एसिड्स होते हैं दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एक्टिव मेटल्स हैं। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? R C डबल बॉन्ड विथ O OH। ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं सोडियम मेटल के साथ। तो रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, इस H को रिप्लेस कर देगा सोडियम एंड वी विल गेट R C डबल बॉन्ड O ONA, और ये H जो है दैट विल बी चेंज्ड इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंसिंग कोई यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होती, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सी बन रही है। तो हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी बाय रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सो दीज आर 3 reactions which involve only hydrogen atom of the carboxylic acid, and these reactions are typical of acids. These reactions show that carboxylic acid is an acid. Next we are going to talk about the chemical reactions, the second type of chemical reactions which involve the hydroxyl group as a whole, hydroxyl group of carboxylic acid. So let us see what are these reactions. I have this carboxylic acid, acetic acid, CH3COOH. This would be easier to remember. I'm going to write in this way. This is acetic acid. एसिटिक एसिड को जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने पर ये बात याद रखिएगा, दिस OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड। इसको मैं जरा इस तरह से लिख लेता हूं, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप। जो न्यूक्लियोफाइल है
वो कार्बोनल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पर, और अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सो हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पर। वो 4 रिएक्शंस कौन से हैं, लेट अस सी। नंबर 1, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं विद PCl5, तो इन PCl5 द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विल बी क्लोराइड आयन। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल विल बी क्लोराइड आयन, जो कि यहां पर अटैक करेगा, और जब यहां पर अटैक करेगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड विद O, Cl, OH की जगह पर Cl आ जाएगा। दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसको एसिड हैलाइड्स बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर का नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, और आईयूपैक नेम क्या है, एथानॉइल क्लोराइड, एथानॉइल क्लोराइड। The other products that will be formed is POCl3 or HCl. Same will be the product formed if you react carboxylic acid with thionyl chloride, SOCl2. In this case again, Cl will replace OH group and we will get CH3, C double bond O, Cl plus SO2 plus HCl, again एथानॉइल क्लोराइड। सो ये एक टाइप के रिएक्शन हो गए जिसमें एसिड हैलाइड बनते हैं जो कि डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं दे आर एसिड हैलाइड्स। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं विद एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एल्कोहल है C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच विल एक्ट एज कैटालिस्ट। तो एल्कोहल के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस्टर होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5 plus water. So again a very important reaction with respect to MCQs. इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हुई है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, एल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफाइल, this is nucleophile, it will attack this carbon and OH group will be replaced with C2H5, so we will get this. इस रिएक्शन में याद रखें चूंकि एल्कोहल अटैक कर रहे हैं और एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है यहां पर। और आपने एल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स याद रखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल is greater than secondary alcohol and this is greater than tertiary alcohol. ये हमेशा याद रखना। एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल रिएक्ट फास्ट विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ कौन सा एल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेगा। आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन में प्राइमरी एल्कोहल भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टर की फॉर्मेशन में जो एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है, सेकेंडरी एल्कोहल की कम और टर्शरी एल्कोहल की और भी कम होती है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पे चूंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, याद रखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जितना
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पर अटैक करना मुश्किल होगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना मुश्किल होगा, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा फॉर्मिक एसिड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके केस में यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। एसिटिक एसिड में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, एक कार्बन और बढ़ेगा प्रोपानोइक एसिड में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज formic acid has greater reactivity than acetic acid, and this has greater reactivity than propanoic acid, and this has greater reactivity than butanoic acid. So आपको पता होना चाहिए अगर आपको MCQs आए कि which of these will react fast in ester formation, तो formic acid की reactivity ज़्यादा होगी। और एस्टर्स याद रखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, दे आर ऑफ्टन यूज्ड एज फ्लेवर्स। आपकी बुक में 3-4 कंपाउंड्स गिवन हैं, एस्टर्स गिवन हैं और उनके फ्लेवर्स गिवन हैं, जैसे कि अमाइल एसीटेट, अमाइल एसीटेट ये एस्टर है और इसका जो फ्लेवर है वो बनाना फ्लेवर है। अमाइल एसीटेट, अमाइल ब्यूटाइरेट, this has the flavor of pineapple. Isobutyl formate, this has the flavor of raspberry. Octyl acetate, this has the flavor of orange, O से O याद रखिएगा। Benzyl acetate, जैस्मीन। अब इसमें MCQs क्या बनते हैं याद रखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट विल बी द फ्लेवर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमाइल एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। अब आपको बात यहां पर क्या याद रखनी है, दिस पार्ट कम्स फ्रॉम एल्कोहल एंड दिस पार्ट कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन से एस्टर की फॉर्मेशन होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ये वाला पार्ट जो सेकेंड पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो फर्स्ट पार्ट है वो एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप अमाइल एल्कोहल और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो जो एस्टर बनेगा उसका फ्लेवर बनाना होगा। अगर आप अमाइल एल्कोहल और ब्यूटायरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो जो एल्कोहल एस्टर बनेगा उसका जो फ्लेवर है वो पाइनएप्पल का फ्लेवर होगा। अगर आप आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो रास्पबेरी फ्लेवर प्रोड्यूस होगा। अगर आप ऑक्टाइल एल्कोहल का एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ऑरेंज फ्लेवर प्रोड्यूस होगा। अगर आप बेंजाइल एल्कोहल का रिएक्शन करते हैं एसिटिक एसिड से, यू विल गेट जैस्मिन फ्लेवर। सो आपको MCQs इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको एक एल्कोहल और एक एसिड गिवन है और आपसे कहा जाता है कि इन दोनों एसिड्स के रिएक्शन से जो एस्टर बनता है उस एस्टर का फ्लेवर कौन सा होगा। तो आपको अगर आपने याद किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एल्कोहल से और एसिड के रिएक्शन से कौन सा फ्लेवर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कम्स द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। So this will give us third derivative of carboxylic acid. अमोनिया के साथ रिएक्शन, this reaction proceeds in 2 steps. So आपको एक MCQs भी पूछा जाता है कि which of the following is not directly formed, which of the following is not directly formed
फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता? आपके पास ऑप्शन है एसिड हैलाइड, आपके पास सेकेंड ऑप्शन है एस्टर, आपके पास थर्ड ऑप्शन है अमाइड, और आपके पास फोर्थ ऑप्शन है एनहाइड्राइड। तो याद रखिएगा कि जो अमाइड है इसकी फॉर्मेशन 2 स्टेप्स में होती है। सो लेट अस सी व्हाट आर दोस 2 स्टेप्स। जब आप अमोनिया का रिएक्शन करोगे, यहां पे अमोनिया जो है वो एक सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप में। सो वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड विथ O ONH4। ये सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन हुआ, सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया। अब इस सॉल्ट को आप हीट करोगे सेकेंड स्टेप में, तो तब अमाइड की फॉर्मेशन होगी। सो ये 2 स्टेप्स में बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ONH4 सॉरी H2O। सो ये अमाइड की फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं बनता, पहले सॉल्ट बनेगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विल प्रोड्यूस अमाइड। सो अमाइड इज एन अदर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड द लास्ट वन इज एनहाइड्राइड। सो हम यहां पे लिख लेते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की विद P2O5, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं दे विल कंडेंस विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक, ये 2, एक का H निकल गया और एक का O निकल गया, एक का OH और एक का H, यहां से वाटर रिमूव हो गया और आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो थर्ड टाइप के रिएक्शंस हैं, these are those reactions in which the whole carboxyl group is involved. So let us see what are these reactions. So third type of reactions involving whole carboxyl group, involving whole carboxyl group. So chemical reactions which involve whole carboxyl group, we have this CH3 C double bond O OH. Suppose we have this carboxylic acid and we react it with lithium aluminum hydride, reduction reaction. रिडक्शन याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करने के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। एल्डिहाइड्स के केस में और कीटोन्स के केस में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं, जो कि एक इससे लेस स्ट्रॉन्गर है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं करता, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। सो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिडक्शन में याद रखें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यहाँ पे आपने इसकी जगह पे CH2 लिख देना, वेरी सिंपल फॉर्मूला। रिडक्शन, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिडक्शन की बात होती है तो रिडक्शन का मतलब होता है कि आप कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को डिक्रीज कर दें और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को इंक्रीज कर दें। सो आपने ये कार्बन के जो 2 बॉन्ड हैं ऑक्सीजन के साथ, इसकी जगह पे क्या लिख देना है, CH3 CH2। सो 2 कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड थे वो आपने 2 H लगा दिए उसकी जगह पर,
और OH, तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आप रिडक्शन करते हो तो अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है, याद रखना है, ठीक है। और एक और रिडक्शन का केमिकल रिएक्शन याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं जब आप उनकी रिडक्शन करते हो विद HI, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो एल्केन में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, मैं दोनों तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखता हूं, कभी मैं C डबल बॉन्ड OH लिखता हूं, कभी COOH लिखता हूं, ताकि आपको पता हो कि किसी भी तरह से लिखा हुआ हो सकता है ये। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप HI के साथ रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये जो सारा ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, कार्बन के 3 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो ये तीनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ खत्म हो जाएंगे और ये तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे। सो वी विल गेट CH3C, कार्बन की तीनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ खत्म करें CH3, सो द प्रोडक्ट विल बी इथेन। सो जब आप HI यूज करोगे तो एल्केन में चेंज हो जाएगा। एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे? जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन्स हैं, वेरी सिंपल। और अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करेंगे तो आपके पास जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल होगा। ये बात आपने याद रखनी है। सो ये केमिकल रिएक्शंस थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में यहीं तक। नेक्स्ट, अमाइनो एसिड्स। जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, अमाइनो एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होता है। जैसे कि ये इस तरह से याद रखिएगा आप, C के साथ एक COOH ग्रुप अटैच होता है, एक H, एक NH2 और एक R ग्रुप। अमाइनो एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होता है, ठीक है। और डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं दे डिफर इन R ग्रुप। R आप चेंज करते जाएंगे तो अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। ये जो अमाइनो ग्रुप है इट माइट बी प्रेजेंट एट द अल्फा कार्बन, कार्बोनल कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अगर अल्फा कार्बन पर अमाइनो ग्रुप है तो इसे अल्फा अमाइनो एसिड बोलेंगे। अगर इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे है तो बीटा अमाइनो एसिड, इससे नेक्स्ट वाले पे है तो गैमा अमाइनो एसिड। थोड़ी सी बातें याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। नंबर 1, देयर आर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स विच आर फाउंड इन प्रोटीन्स while there are hundreds which occur naturally। तो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हंड्रेड्स में हैं, लेकिन प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो 20 हैं। ओनली 20 अमाइनो एसिड्स, ओनली 20 अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स, फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। एंड हंड्रेड्स अकर नेचुरली, नेचुरली ये बहुत ज़्यादा इनकी तादाद होती है। हंड्रेड्स अकर नेचुरली, एक बात। दूसरी बात, जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं दे आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स में पाए जाने वाले सारे अमाइनो एसिड्स अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स, फाउंड इन प्रोटीन्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। नंबर 3, आप ये बात याद रखिएगा कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन आर ऑप्टिकली एक्टिव। अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अमाइनो एसिड्स होते हैं इन एक्वस मीडियम दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। इन एक्वस मीडियम they exist as zwitter ion,
ज्विटर आयन क्या होता है? ज्विटर आयन जो है वो इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन से बनता है। जैसे ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, और इस अमाइनो एसिड में ये कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज करता है और ये अमाइनो ग्रुप इसको गेन कर लेता है, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और दिस इज ज्विटर आयन। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं एक्वस मीडियम में ये ज्विटर आयन की फॉर्म में होते हैं। यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड्स के जो है ना वो जो कॉमन नेम्स हैं वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये जो कॉमन नेम्स होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर सोर्स आर फ्रॉम देयर ओरिजिन, आर फ्रॉम सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। किसी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या उनके सोर्स को, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे ग्लाइसिन ग्लाइकोज से निकला है जिसका मतलब स्वीट होता है। इसी तरह ट्रायोसिन है, ये इनका भी जो सोर्स है, सोर्स के की बेस के ऊपर इनका नाम है। तो हम ज़्यादातर इनको जो है वो इनके कॉमन नेम से जानते हैं, और इनको इनके नाम को हम एब्रीविएट करते हैं 3 लेटर फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन को हम लिखते हैं GLY, शॉर्ट वे इनको लिखने का ये है। एलानीन है, उसका शॉर्ट वे लिखने का क्या होगा, हम 3 लेटर वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ALA। इसी तरह से जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, उसको हम ग्लूटामिक एसिड, उसको हम GLA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 लेटर ये आपकी बुक में जो गिवन है वो अपने सारे देखने हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स की 2 कैटेगरीज होती, याद रखिएगा। अमाइनो एसिड्स की 2 कैटेगरीज हैं। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? असेंशियल अमाइनो एसिड्स, असेंशियल वो अमाइनो एसिड्स होते हैं विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। इनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, सो दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट। अगर ये डाइट में इंक्लूडेड नहीं होंगे तो इनकी जो डेफिशिएंसी है इट कैन कॉज वेरियस डिजीजेस। और दूसरी टाइप है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? कि वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। सो अगर ये हमारी खुराक में शामिल ना भी हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, ठीक है। एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में 1-2 पॉइंट याद रखिएगा। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स चूंकि ज्विटर आयन की फॉर्म में होते हैं, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक अमाइनो एसिड RCH NH3 पॉजिटिव और COO माइनस। आपको MCQs पूछा जाता है कि एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, एज पॉजिटिव आयन, एज नेगेटिव आयन, एज अ न्यूट्रल कंपाउंड। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करोगे तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनको ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप पिकअप कर लेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा RCH COOH NH3 पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये न्यूट्रल हो गया, और हमारे पास नेट चार्ज पॉजिटिव है। तो याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसको जहन में बिठाने के लिए आसान सा तरीका यह है कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होते हैं। और नेगेटिव बेसिक मीडियम में जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो नेगेटिव आयन की फॉर्म में होते हैं।
इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। RCH NH3 पॉजिटिव, COO माइनस OH नेगेटिव। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं दे विल टेक अप हाइड्रोजन आयन फ्रॉम NH3 पॉजिटिव, तो आपके पास बन जाएगा RCH COO माइनस और NH2 प्लस H2O। तो नेगेटिव आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं इन बेसिक मीडियम। सो यहाँ तक आज हम जो है ना वो रखेंगे टॉपिक को। सो होप यू अंडरस्टैंड।